Good afternoon everyone, good afternoon all my viewers. So today I am going to make something very special. In the hotels we used to make too many things in a very professional way. So as a chef मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसका नाम मैंने ब्राउनी ब्लास्ट रखा है, which is a fusion you can say and which can be easily made. Now hotels में there are many things which goes with your many products in which contains eggs and everything, but the recipe that I am going to share today is a pure vegetarian recipe in which and most of the help that I've taken is from the Amul products. So before I start the recipes and everything, I would like to thank Amul, because Amul have really not only developed as a brand, I would say, but the products that they have developed are truly of international level. Because now most of, and especially I would like to mention about the chocolates, the Venezuelan, the Tanzanian chocolates, and amazing flavors have been developed. There was a time when we think of the chocolate, it was only for the mode. But now the Amul have developed the so-called varieties of the chocolate up to the international benchmark, which is not only widely acceptable in India, I would say, but it is also acceptable in abroad. So I'm going to combination in my brownie blast recipe. I'm going to use the brownies I'm going to show you how to make, and this recipe I would be showing you in how to make it in the oven. But you can also, in case if you wish to make it on a steel cooker or the gas cooker, then also you can use that. So before I start, I would like to explain the ingredients and everything. Since it's COVID time, we need to particularly sanitize our hand, so to kill the maximum amount of bacteria and be absolutely safe. So for the brownie, obviously, it's a very favorite food product for all the chocolate lovers, I would suggest. So the chocolate is the essential ingredient. Now if you ask me, I try brownies at my home with the Tanzanian, the Venezuelan, the mocha, you name a dark chocolate from Amul, and I use them because each and every brownie comes up with a very unique and different flavor. And that's why I am very much insistent on the product development that have been gone in your brownie. Now let us speak about the vegetarianism. Why I have developed this brownie without egg is the flavor is almost same, and especially India being a vegetarian country, everyone would be able to enjoy. And those people also who do not want to consume eggs, they can, and it's going to be a very rich brownie. So first of all, what I'm going to do is I'm going to take a soft butter, and as and when I'm making it, I would also be sharing the recipe for the brownies. So all you need is around 150 grams of butter, and yes, it have to be Amul butter. Like Amul butter is my favorite. There are many butters available in the market, but the taste and the texture and the flavor and the maturity that have been developed by the Amul butter is very much spectacular, I would say. And then I would be using castor sugar. Now, in case if you are using a regular sugar during the lockdown times, if you are not getting it, you can also use a regular sugar. And this sugar measurement would be approximately 85 grams. So your sugar and butter is being mixed. Now what we are going to do is we are going to whip this. But before we whip this, I would like to remind you the recipe once again. The recipe is 150 grams of butter and 85 grams of sugar. So I'm also going to make one of the most lovable sweets from East India, which I'm also going to incorporate in my dish. And for that, what we need is of course, your milk.
Yes. Now if you say me, you can use cow milk, you can use fresh milk. I always prefer Amul Diamond because it's very rich in your fat content and which gives me a absolutely good Rasagollas. So I have put my milk to heat. I'm going to curdle this milk with the help of a lemon juice and I'm going to make Rasgulla. Here my sugar syrup is also 7 cups of water and I'm going to add in 7 cups of water 1 cup of sugar, which is 2. I'm just going to make the sugar syrup which is just sweet, not too much. So let the sugar syrup get ready in the meantime on a slow gas. So now what I'm going to do is I'm going to whip the Amul butter and sugar. What I'm going to do is I'm going to whip Amul butter and sugar. Now you can see that this is yellowish in color. The butter is yellowish in color. So what will happen is I'm going to beat this. So basically what I'm doing is, as you people all can see, is what I'm doing is incorporating the air in this and slowly, steadily it will become your white in color. The moment you keep on beating it, it becomes white in color. So we have to beat till the time it not only gets dissolved. So you can see that now slowly the color is changing. Slowly the color is changing. So how the butter was yellow in color, the more we beat, the more it will turn in creamy white. So इसे क्या होगा, नहीं आपका शुगर गल जाएगा. ये white आने का मतलब ही होता है कि आपकी शुगर भी गल गई और जो एयर चाहिए थी उससे क्या होगा, ये जो एयर है वो अंदर जा रही है और ये अंदर जितनी जाएगी उतनी मेरी ब्राउनी बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी आएगी. Chef, one तो question. Salted butter. The butter, yes, the butter what I am going to use is salted butter. As I can see, there is a question coming in. The butter have to be salted because the sweetness is there. Whatever the sweetness is there in your sugar and the butter and the sweet mouthfeel that is there. So what will happen is that in that mouthfeel, if we add a pinch of salt, if you most of the chefs in the industries are aware that whenever we make some sweet products, we add a very minute pinch of salt. For example, हम लोग टमाटो सूप में हम लोग शक्कर क्यों डालते हैं? To tone the acidity. So similarly, in the bread products, in the sweet products, we add a pinch of salt to give a more balanced flavor of the product. So once ये butter आपका whip हो जाता है, so what I am going to do is chocolate. Now chocolate, my milk is boiled. Yes, my milk is boiled. I can see that. So हम लोग क्या करेंगे इसमें अब? Lemon juice डालेंगे. Yes, lemon juice डालने. What I have done is I have smartly switched off my gas. इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर आस्ते आस्ते कम होना चालू होगा और हार्डली आई हैव वेटेड फॉर 30 सेकेंड्स और मेरा सरफेस एरिया ज़्यादा है. सो माई टेम्परेचर इज कूलिंग डाउन क्विकली. सो व्हाट आई डू इज अप्रॉक्सीमेटली 2 लेमन, आपको उतना जूस लगेगा 2 लेमन. 2 लेमन वुड बी रिक्वायर्ड पर लीटर ऑफ मिल्क. बट आपको not all together you have to put. What you have to put is little by little. Yes, little by little
you're going to put, and you can see my milk has started to curdle. I don't need to whisk or anything. Yes, I can see my milk is curdled. I keep it for 2 minutes. Alright, so what will happen if I keep it for 2 minutes? Then all the protein and the whey would be nicely set, and then I'm going to strain it. Now my butter is there. Now I'm using a Venezuelan chocolate, a bit bitter, and I love it. So what I have done is I have grated. Now chocolate is a very delicate thing. Let me tell you guys. अगर आप लोग handle कर रहे हैं तो temperature range is very important. What happens in the hotels and all, हम लोग thermometers होते हैं, हमारे पास chocolate melting machine होती है which does not allow the heat to cut off. But now I am experienced. आप लोग first time करोगे so high chances रहता है कि आपकी chocolate curdles हो जाएगी. तो आप क्या करोगे, आप जस्ट 10 सेकेंड्स के स्लैब्स में माइक्रो में आप चॉकलेट को मेल्ट करोगे, सो दैट देयर इज नो ओवर पावर ऑफ हीट एज वेल एज देयर इज इन अ स्लैब ऑफ 10 सेकेंड्स. व्हाट आई हैव डन इज, सर प्लीज टॉक इन हिंदी. ऑल राइट. तो मैंने क्या किया है, आप लोग देख सकते हो कि मैंने 10 सेकेंड के स्लैब में इस पे माइक्रो मार दिया है. मैंने 10 सेकेंड्स का माइक्रो हम लोग क्यों मारते हैं? ओके, सिंस द कस्टमर परसेप्शंस आर दैट वी आर नीड टू टॉक इन हिंदी, मैं आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ. मैंने जो अभी चॉकलेट का माइक्रो मारा है वो सिर्फ 10 सेकेंड के लिए मारा है. इससे मैं क्यों ज्यादा नहीं मार रहा हूँ कि अगर मैंने हीट दे दी चॉकलेट को तो उसका नतीजा ये होगा कि चॉकलेट क्रम्बली हो जाएगी और चॉकलेट मेल्ट नहीं होगी. तो आप अभी देख सकते हो कि चॉकलेट मेल्ट तो हुई नहीं है, बट इसने एक वार्म पकड़ ली है. होटल्स में क्या होता है, हमारे पास मशीन वगैरह सब कुछ होते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती है. बट ये घर में आप माइक्रो में कर रहे हो तो आपको 10 सेकेंड के बाद आपको एक बार चॉकलेट को मूव कर देना है और वापस 10 सेकेंड्स के लिए और एक बार माइक्रो मार देना है. ऑलराइट, इन बिटवीन मैंने मिल्क मेड लिया है और ये वापस 10 सेकेंड्स की माइक्रो हो गई है. अभी भी आप देखोगे ये चॉकलेट मेल्ट होना चालू हो गई है. अगर आप ध्यान से देखो, ये देखिए, ठीक है. इसको एकदम क्रम्बली नहीं होना है. अगर क्रम्बली टेक्सचर आएगा तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा. चॉकलेट अपना फैट छोड़ना चालू कर देगा. तो ये आपने देखा, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 10 सेकेंड्स के स्लॉट में सिर्फ ये मैंने थर्ड राउंड स्टार्ट किया है. तो इन बिटवीन अभी आप देख रहे हो रसगुल्ले के लिए भी मेरा पनीर मस्त सेपरेट हो चुका है वे से, तो उसको भी हम लोग स्ट्रेन करेंगे. ये देख रहे हो आप अभी थर्ड, ये काफी मेल्ट हो गई है और ये शाइन देख रहे हो आप. अगर आपको होममेड चॉकलेट्स बनानी है तो बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको मोल्ड्स में डाल के सेट कर देने का है. देख रहे हो, ये सिर्फ 30 सेकेंड्स. बट अगर यही माइक्रो अगर आप 30 सेकेंड्स अगर आप इसको एक बार में मारोगे तो ये आपकी चॉकलेट पूरी डैमेज हो जाएगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें आपको याद रखने का, कि आपको चॉकलेट 10-10 सेकेंड में 3 बार माइक्रो मारनी है. जो चॉकलेट यूज कर रहा हूं वो है वेनेजुएलियन चॉकलेट, और इस चॉकलेट में आपको ग्रेट कर लेना है. अगर आप ग्रेट करके माइक्रो मारोगे तो ये आपका इजी रहेगा. इसी के साथ मैं मिल्क मेड डालूंगा. जनरली अगर हम लोग अंडे वगैरह लेके अगर ब्राउनी बनाते होते थे तो हम लोग जितना बटर होता था उतना शुगर लेते हैं. बट यहाँ पे आपने देखा होगा 150 ग्राम बटर में मैंने सिर्फ 85 ग्राम शुगर लिया था.
और ये जो चॉकलेट का अमाउंट है 170 है, प्लीज याद रखिएगा। ये जो चॉकलेट का वेट है वो 170 है। 150 ग्राम बटर में 150 ग्राम बटर में आपको 85 ग्राम शुगर लेना है, 170 ग्राम चॉकलेट्स लेनी है, और जो मिल्क मेड है आपका, जो आपको बॉडी भी देगा और सॉफ्टनेस भी देगा। ठीक है, तो ये सारे लिक्विड्स मैंने ले लिए हैं। उसके बाद मैं 130 ग्राम मैदा लूंगा, 130 ग्राम मैदा अलॉन्ग विद बेकिंग पाउडर, जो मैंने मैदे में ही मिक्स कर दिया है। जो मैदा का वेट होगा 130 ग्राम होगा, जो कोको पाउडर का वेट होगा वो 22 ग्राम्स होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो मैदा का वेट होगा 130 ग्राम होगा, जो कोको पाउडर का वेट होगा वो 22 ग्राम्स होगा। तो ये मेरी ब्राउनी की रेसिपी प्योरली वेज, मैंने तो कोई अंडा यूज नहीं किया है इसमें, और इसमें मैं 90 ग्राम पानी भी डालने वाला हूँ। मिल्क मेड ना हो तो? ऑल राइट, मिल्क मेड ना हो तो आप शक्कर बढ़ा दीजिए, बट मैं प्रेफर करूंगा आपको मिल्क मेड यूज करने के लिए, तो वो आपका सॉफ्टनेस देगा। जैसे मैंने पहले बता चुका है कि अंडे का काम ही होता है सॉफ्टनेस और फ्लफीनेस देना। तो मिल्क मेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इवन आप घर पे, आप याद हो अगर आप मैदे के पराठे बनाते हैं तो उसमें दूध का पाउडर बहुत लोग डालते होंगे, आपने देखा होगा। तो वो जो दूध का जो मिल्क सॉलिड्स होता है वो सॉफ्टनेस देता है, तो उसी सॉफ्टनेस के लिए हम लोग मिल्क मेड डालते हैं। और अगर घर पे मिल्क मेड नहीं है तो बकायदा आप शुगर डाल सकते हो, और सॉफ्टनेस के लिए दूध का पाउडर डाल सकते हो। मिल्क मेड हाउ मच? मिल्क मेड जो मैंने जो रेसिपी डेवलप की है वेजिटेरियन के लिए, उसमें मैंने 170 ग्राम्स मिल्क मेड यूज किया है। क्यों 170 ग्राम्स? क्योंकि जो मिल्क मेड होता है उसमें वाटर कंपोनेंट भी होता है, शुगर कंपोनेंट भी होता है, जो ऑलमोस्ट 50% होता है। तो इसीलिए मैंने 170 ग्राम दिया है। तो मेरा जितना मैंने बटर लिया था उतना मेरा शुगर हो गया है। तो ये कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो, ब्राउनी की ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मैं अभी वॉलनट्स भी डाल दूंगा। वॉलनट्स आप ऊपर से गार्निश के लिए भी डाल सकते हो, बट मैं अंदर डाल रहा हूँ क्योंकि इसको बेक करके मैं उल्टा कर दूंगा। तो ये आप देख रहे हो ब्राउनी का बैटर रेडी हो गया है, और इसको बेक करने के लिए अब मैं मेरे बेकिंग मोल्ड में डाल रहा हूँ। इसको अगर आप अवन में कर रहे हैं, कोई भी कंपनी का अवन हो, आपको कन्वेंशन में जाना है। कोई भी कंपनी का अवन हो, आपको कन्वेंशन में जाना है, और आपको प्रोसेस सेलेक्ट करना है कन्वेंशन का, और टेम्परेचर रहेगा 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस। नाउ आई एम पुलिंग ऑफ माई ग्लव्स and I'm going to bake it in the oven. जो टेम्परेचर रहेगा मैं वापस बताना चाहूंगा, 170 डिग्री रहेगा। कोई भी माइक्रोवेव ओवन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कन्वेंशन, और 20 to 25 डिग्री सेल्सियस मिनट्स में आपका ये ब्राउनी हो जाएगा रेडी। तो मैं कन्वेंशन सेलेक्ट करूंगा, टाइम सेलेक्ट कर दिया है, और मैंने ब्राउनी रख दी है चढ़ाने के लिए अवन में। इसके बाद अब हम लोग रसगुल्ला भी सीखेंगे, जो कलकत्ता की सबसे फेवरेट स्वीट है, और पूरे इंडिया में सबसे फेवरेट स्वीट में माना जाता है रसगुल्ला, जो है बहुत ही सिंपल बट
बहुत ही टेक्निक्स लगती हैं आपको यूज करने में, और जो बहुत ही सिंपल है, और मैं आपको वो हर एक टेक्निक आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रसगुल्ला में। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट दूध हो गया है, तो पहले मैं इसको स्ट्रेन कर देता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पते की बात यह है कि मैंने इसको मसलिन क्लॉथ में स्ट्रेन तो कर दिया है, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आपको एक चीज याद रखनी होगी, इसको मैंने कडल कैसे किया था, हाउ आई हैव कडल दिस विद द हेल्प ऑफ लेमन। तो इसमें एक लेमन का फ्लेवर है, तो वो हमें निकालना होगा। तो उस लेमन के फ्लेवर को निकालने के लिए हम लोग इसको पीने के पानी से ही वॉश करेंगे। इससे क्या होगा, आपका लेमन का फ्लेवर निकल जाएगा। पी के वॉश करने के बाद हम इसे बाहर से भी वॉश कर देंगे, और इसको हम लोग कम से कम इसको हम लोग आधे घंटे के लिए, आप इसको ऐसा थोड़ा दबा दीजिए और जो एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा। इसको मैंने टंगा दिया है, करीबन आप इसको 45 मिनट से 1 घंटे तक टंगा दीजिएगा, ताकि ये आपका बहुत ही सॉफ्ट सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। और वो पानी ड्रेन आउट होने के बाद ये सैनिटाइजर है, इससे फुट पे उतना कुछ इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये हर्बल सैनिटाइजर है जो मैं यूज करता हूँ। ऑलराइट, सो इसको हम रखेंगे। अब इसको नीड कितना करना है, क्योंकि अभी तो हमारे पास उतना टाइम है नहीं, तो पहले से मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा बना के रख दिया था। ये अलग से मैंने पहले से बनाया था। देखिए ये सॉफ्ट पनीर ही है, एकदम सॉफ्ट है। इसको नीट कितना करना है, नीट करने का तरीका 8 से 10 मिनट। अभी कोई 5 मिनट में भी कर लेगा, कोई 15-20 मिनट में भी करेगा, वो आप कैसे करते हो उसके हिसाब से। आपको जब आप रोटी का आटा बांधते हो तो जैसे यहाँ हथेली से गूंथते हो, तो आपको वैसे ही इसको गूंथने का है। कब तक गूंथने का है, जब तक हथेली पे तेल ना आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। जब तक हथेली पे तेल ना आ जाए तब तक आपको इसको गूंथना है। बहुत सारी रेसिपीज होंगी, बहुत कुछ होगा, बट शेफ के पास से सीखने का अंदाज, तरीका सबसे बेस्ट होता है। कुछ कुछ शेफ्स भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बट उस तरीके से काम करने के पीछे कुछ लॉजिक होती है, कुछ वो एरियाज में जहाँ पे काम करते हैं वो फर्क होता है। बाकी अगर कुछ ट्रेडिशनल चीज हम बना रहे हैं तो वही रहने वाली है। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट छना। पानी निकलने के बाद यहाँ पे लाना है हमें, और इसको तब तक 8 से 10 मिनट तक मसलना है, जब तक, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो और कॉन्फिडेंस नहीं आता है रसगुल्ला बनाने में, तो आप थोड़ा सा मैदा डाल सकते हो इसमें। कुछ लोग सूजी भी डालते हैं, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देख रहे हो, ये है पनीर, बट कितना सॉफ्ट, और ये तेल निकलना चालू हो गया है। उसके बाद जो शुगर सिरप है, शुगर सिरप को क्लियर करने के लिए हम लोग लेमन जूस डालते हैं, विनेगर डालते हैं, कुछ शेफ लोग दूध भी डालते हैं। तो अभी शुगर सिरप में आपकी 2 टेक्निक है जो मैं जनरली कहीं भी आपको कुछ वीडियोस में मिल जाएगी, कुछ वीडियोस में नहीं मिलेगी। अब 2 शुगर सिरप बना लीजिए। पहले 1 कप शुगर सिरप में आप क्या कीजिए, 1 कप शुगर में आप 1 कप से लेके 1.5 कप पानी लेके थोड़ा सा गाढ़ा शुगर सिरप बनाइए, एकदम गाढ़ा नहीं, हल्का सा। तो और उसको हो जाने के बाद उसको ठंडा करने रख दीजिए।
नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? दूसरा से शुगर सिरप बनाइए जिसमें आप ये रसगुल्ले उबालने वाले हो। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो शुगर सिरप होगा उसमें याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 कप शक्कर रहेगा तो आपका 7 से 8 कप पानी रहेगा, और ये हल्का सा कम मीठा होगा कंपेयर टू पहले वाले शुगर सिरप से, जिसमें आपको, और इसी पानी में आपको रसगुल्ले उबालने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 टू रिमेंबर, तभी आपको डालना है रसगुल्ले जब पानी उबल रहा हो, और टाइमिंग जो रहेगा वो 15 से 20 मिनट का रहेगा। और याद रखिएगा इस 15 से 20 मिनट में, ये मेरा पानी उबलना चालू हो गया है, याद रखिएगा इस 15 से 20 मिनट में आपको हमेशा पानी उबलते ही रहना है जब तक आप ये रसगुल्ले पका रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे शेफ आप ब्राउनी भी बना रहे हो, रसगुल्ले भी बना रहे हो। अभी शेफ लोगों की एक आदत होती है कि खाना तो खाना ही होता है, बट उसके साथ साथ कहते हैं कि हम खाना मुंह से तो बाद में खाते हैं, बट हम खाना पहले नजर से खाते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नजर से भी ज्यादा तो सबसे पहले बोलूंगा कि हम लोग खाना कान से खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग, पुचका तो आप लोग सभी का फेवरेट होगा, तो पुचके की जब आवाज आती है तभी आपकी आंखें ढूंढती है कि ये आवाज कहां से आ रही है, और जब ये आवाज कहां से आ रही है तब आपकी आंखें ढूंढती है, तो फिर आपकी नजर पुचके वाले पे पड़ती है, और जब पुचके वाले पे नजर पड़ती है तो फिर आप बोलते हो मुंह में पानी आता है, और जब मुंह में पानी आता है फिर आप खाना चालू करते हो और सब कुछ होता है। तो हम लोग कान से शुरू करके नाक तक से पहले आंख करते हुए सब करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, अभी मैंने आपको 2 शुगर सिरप का सजेशन इसीलिए दिया था कि बहुत बार क्या होता है जब शुगर सिरप आपका ज्यादा गर्म होता है तो ये आपका रसगुल्ले जो फूलने के बाद बैठ जाएंगे। तो ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, 15 मिनट तक बट आपको स्पॉन्जी रसगुल्ले खाने हैं तो आपको बनाना है। तो ये मेरे को प्रेजेंटेशन, हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग इतने ही रसगुल्ले बनाएंगे, ये फिर मैं बाद में बना लूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि खाना, रसगुल्ले, ब्राउनी, सबसे पहले कि खाना तो आपको वही खाना चाहिए जो दिखने में आपको भूख पैदा कर दे। खाना आपको दिखने में भूख पैदा कर दे। तो हम लोग वाव प्रेजेंटेशन करेंगे, और वाव प्रेजेंटेशन करने के लिए आप लोग बोलोगे होटल में सामान होता है, सब कुछ होता है। नहीं, फिलहाल मैं भी लॉकडाउन में हूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ सामान चाहिए, कुछ छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स, और आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है वाव। तो उस वाव प्रेजेंटेशन के लिए हमारे रसगुल्ले भी रेडी हैं जो मैं यूज करने वाला हूं, और मैं इसको होने देता हूं। इन बिटवीन ब्राउनी तो हो रही है, बट मैंने क्या किया था, ब्राउनी को ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने ब्राउनी पहले से ही बना के रख दी थी, ताकि मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लूं और आप लोग बोर भी ना हो जाओ एक रेसिपीज देखने के लिए। तो हमारा ऑलमोस्ट सब रेडी है, रसगुल्ला हो गया, ब्राउनी हमारी हो रही है। ब्राउनी होने के बाद करीबन आप थोड़ी उसको ठंडी कर लेना, और उसके बाद आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 10 दिन 15 दिन तक, ये आपकी खराब नहीं होने वाली है। और चॉकलेट्स आप कोई भी यूज कर सकते हो। इन बिटवीन जब तक सब कुछ हो रहा है, मैं आपको एक बार ब्राउनी की रेसिपी बता दूं, प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे वो रेसिपी है कि आपको बटर लेना है 150 ग्राम, शक्कर लेनी है 85 ग्राम्स, दोनों को बीट करना है,
वो दोनों को बीट करने के बाद आपको फिर उसमें चॉकलेट 170 ग्राम्स लेनी है, जिसको मेल्ट करने का है। मेल्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है 10-10 सेकेंड के 3 स्लैब में मेल्ट करना है आपको। उसके बाद आपको करना है, डाल देना है मिक्सचर में, और उसके बाद आपको मिल्क मेड डालना है। मिल्क मेड की क्वांटिटी आप 170 ml रख सकते हो। उसका हाफ उसमें वाटर होता है ऑलरेडी, ये होता है, इसीलिए हम लोग 170 लेते हैं, सॉफ्टनेस रहेगी। उसके बाद आप जब छानोगे आटा, तब आप उसी में 130 ग्राम आटे में 5 ग्राम जितना बेकिंग पाउडर आपको डालना पड़ेगा। ये आपका राइस करेगा। और आपको 22 ग्राम कोकोआ पाउडर डालना है अगर आपको ज़्यादा कलर डार्क चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोकोआ पाउडर नहीं डालना है और प्योर चॉकलेट से बनाना है, 30 ग्राम चॉकलेट आप और 50 ग्राम इनफैक्ट मैं बोलूँगा और चॉकलेट बढ़ा सकते हो। कहीं कहीं अगर आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग ने बाहर भी गए होंगे, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज मैक्सिकन ब्राउनी। वो इतनी स्वीट होती है, इतनी स्वीट होती है कि आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि कड़वा है। तो अलग अलग ब्राउनीज में भी अलग अलग वेराइटीज होती है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स अमूल दैट दे हैव गिवन डार्क चॉकलेट तो दिया, बट डार्क चॉकलेट में भी उन्होंने मेरे को दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के, वेनेजुएला, तंजानिया की ऑप्शंस दिए हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू अमूल टू यू नो प्रोवाइड मी द अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन मेक डिफरेंट ब्राउनीज एक्चुअली। तो मेरी ब्राउनीज हो रही है, इसको अभी भी टाइम लगेगा, बट मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई थिंक मैंने कुछ हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे खाने की। तो खाने की इसी बात में मैं बोलूँगा कि अगर खाना ऐसा होना चाहिए कि जो एकदम दिख के लगे कि मैं टूट पड़ूँ। और ब्राउनी के साथ रसगुल्ला का कॉम्बिनेशन का कारण क्या है, ब्राउनी बहुत स्वीट होती है। आपने खा लिया, आपका वो टेस्ट बट कुछ देर बाद बहुत हैवी हो जाएगा। तो आपको वापस अगर वो फ्लेवर एंजॉय करना है, टेक अ स्मॉल बाइट ऑफ अ रसगुल्ला, जो उसमें भी स्वीट है, बट वो जो बिटरनेस, जो स्वीट बिटर होगी, जो आपका फ्लेवर वापस चेंज हो जाएगा। तो जब आप वापस ब्राउनी विद आइसक्रीम खाओगे, आपका एक वो फ्लेवर बहुत डेवलप होगा। तो हमारा ब्राउनी रेडी है और इसको हम लोग बनाने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ चॉकलेट गार्निश बना के रखी थी, क्योंकि हम सब लोगों की आदत होती है कि हम जिन्हें भी खाना खिलाएं बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से सजा के दुल्हन की तरह खिलाएं। तो मैंने एक छोटी सी इस चॉकलेट गार्निश बना के रखी थी। अमूल चॉकलेट वेनेजुएलियन, बेसिकली खाने का श्रृंगार करेंगे हम। तो आप लोग देख रहे हो ना, देखो कॉन्स्टेंटली पानी उबल रहा है, पानी कॉन्स्टेंटली उबल रहा है। रसगुल्ला के मेरे साइज भी डबल हो गए हैं, एकदम वाइट कलर के हैं। तो ये है मेरे रसगुल्ला के। तो अभी ब्राउनी रेडी है। आप रसगुल्ला देखिए कितने डबल हो गए हैं। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि रसगुल्ला कुक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आपको पता कैसे चलेगा रसगुल्ला कुक हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसको ना मैं ठंडे पानी में डाल दूंगा। अगर समझो समझो मैंने ठंडा पानी लिया। कुछ चीजें पता करने के लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम चेक करें कि हमारे टेस्ट करके ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे रसगुल्ले हुए कि नहीं। ये देखो, ये मैंने एक पानी लिया और अपना रसगुल्ला डाल दिया। ये देखो अभी भी तैर रहा है, तो इसका मतलब ये अभी भी होगा। इसको नीचे बैठने की जरूरत है। अब नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा और वो है शुगर गार्निश। इससे आप लोगों का फूल गया मतलब हो गया। हाँ, फूल गया मतलब हो गया। हाँ, फुल गया मतलब आपका ऑलमोस्ट होने आया है। ये अब आप देख रहे हो, ये
शुगर मैं डाल रहा हूं बहुत ही स्लो गैस पे। मैं बनाने जा रहा हूं शुगर गार्निश। अभी ये शुगर गार्निश क्या, आप लोग कैंडीज वगैरह तो खाते ही हो, सब शुगर से ही बनता है। शुगर को एक्चुअली अलग अलग टेस्ट और ये करते हैं, तो हम लोगों ने कुछ चम्मच शुगर ले ली है इसको, और स्लो गैस पे होने दूंगा। इन बिटवीन ये मैंने ब्राउनी जो मैंने फ्रीज करके रखी है मैं रखने वाला हूं। ये मेरे फ्रूट्स हैं, ये मेरा थोड़े एसिडिक कंपोनेंट्स मैं डाल रहा हूं। चॉकलेट बात हो रही है। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी वैरायटी है। ये ब्लूबेरी कंपोत है। ये थोड़ा एसिडिक है, जो आप ब्राउनी एक्सेस शुगर खा के अगर आप ओवर ईट कर जाते हो तो ये आपको ये करेगा। और सबसे अच्छी बात है, अभी कोरोना के चलते सब लोग हाथ धोने का सिस्टम कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट अभी सबसे मजे की बात है कि ये 5 स्टार होटल में आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है। इवन हम जिस चॉपिंग बोर्ड पे खाना बनाते हैं, उस चॉपिंग बोर्ड को खाना बनाने के बाद हम चेंज कर देते हैं, अगर हम आलू के बाद प्याज में आते हैं तो उसके बाद भी हम डिसइंफेक्टेंट वगैरह सब कुछ करके वॉश करके यूज़ करते हैं, तो हमें उतनी तकलीफ नहीं होगी कोरोना के लिए। और ये फ्रूट्स हैं जो मैं एक एक करके रखूंगा इधर। हम लोग कभी भी ये मैंने फ्रूट्स रख दिए हैं, ब्राउनी रख दी है। अब ये जो मेरे रसगुल्ले हैं बस। खाना मतलब बढ़िया खाना और उसके साथ खाने का श्रृंगार पूरा टोटल न्यू लेवल पे ले जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो शुगर, ये शुगर ब्राउन होनी शुरू हो गई है। इन बिटवीन मैं हेल्थ बेनिफिट्स भी डाल रहा हूँ। ठंडे पानी में आप इसको रख दीजिएंगे तो ये स्प्रिग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप इसको स्प्रिग्स के पत्ते आप इधर रख सकते हो। विच फ्रूट? ये मिक्स फ्रूट्स है, इसमें आप आई वुड प्रेफर एसिडिक फूड लो। आप मैंगो ले सकते हो, कीवी ले सकते हो। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ज़्यादा अगर हम सजाएंगे, जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बहुत कुछ ज़्यादा कर देते हैं। ये देखिए, ये मेरा शुगर सिरप कैरामलाइज हो गया। देखिए अभी तक मैंने इसको हिलाया नहीं था, जब ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया तब जाके मैंने इसको हिलाया है। इसका टेम्परेचर अगर आप मेरे को पूछोगे तो ये करीबन दिस इज अराउंड 160 डिग्री सेल्सियस। So I need to cook this on a slow flame.
ये देखिए मैंने अभी तो कुछ किया नहीं है, फिर भी ये मेरी प्लेट बड़ी ही सुंदर लग रही है। और अब आइसक्रीम मैं सबसे लास्ट में लूंगा, एक बार मेरी ये शुगर हो जाए, क्योंकि ये हमेशा जब भी आप ये शुगर बना रहे हो तब याद रखना कि ये एकदम एंड में बनाने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा देर रहेगी नहीं। अगर आपको फिर भी अगर बाद में यूज़ करना है तो इसके लिए आपको करने पड़ेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में आपको इसको रखना है। जनरली कॉमन भाषा में हम लोग चिक्की जब बनाते हैं तभी भी हम स्पंज शुगर का कैरामल बनाते हैं, राइट। तो ये देखिए मेरी कैरामल ऑलमोस्ट रेडी है। कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं थोड़ा मेरा किचन का टेबल, ये देखिए कलर बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। ये देखिए कैसे निकल रहा है। सो ये देखिए नाइस कलर। अब इसको मैं स्पन करूंगा। ये स्पन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे पता चलेगा। यस, ये स्पन होना चालू हो गया है। ये अब आप लोग देख सकते हो, फोकस किया। ये अगर आप करोगे तो बहुत ही सावधानी से करना, क्योंकि नहीं आपका किचन गंदा करेगा 100%, बट बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ये गर्म भी होगा। आपके किचन में करोगे तो बहुत चांसेस है कि चींटी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो ये हमारा स्पंज शुगर रेडी है। आप देख सकते हो इसको मेरे को ले लेना है और इसको मैं फोल्ड करूंगा। ये है मेरा स्पंज शुगर, आप देख सकते हो। ये बहुत जल्दी बैठ जाएगा, तो इसके बैठने के पहले अब मैं अपना आइसक्रीम रखना चाहूँगा। सो ये मेरा अमूल का आइसक्रीम रेडी है और ये मेरी स्पंज शुगर। तो ये मेरी स्पंज शुगर रेडी है, आप देख सकते हो। ये मेरी चॉकलेट गार्निश। यस, थोड़ा गिर गया, इसको खड़ा कर देते हैं हम। यस, सो नाउ आई विल ट्राई टू इट। और मैं चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर आप कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे फेसबुक पेज पे आप मेरे को पूछ सकते हो या अमूल को पूछ सकते हो। और मैं अमूल को खैरदिल से धन्यवाद देना चाहूँगा
कि आज मैं भारत के अनेक व्यूवर्स लोगों को ऐसे डिश सिखा पाया हूँ जो बहुत सिंपल है, जो कभी भी सोची नहीं होगी शायद अपने घर पे बनाने के लिए कि बहुत टफ होती होगी। और ये लॉकडाउन हो या कभी भी हो, आप बना सकते हो और आप प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो और खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ शेफ। तो आई होप सो आपको सबको अच्छी लगी ये डिश, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक अमूल कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्किल्स इंडिया के इतने सारे व्यूवर्स को दिखा सका। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक our chief mentor Dr. Subarno Bose, Mr. Abdullah Ahmed, and all the directors for showing the faith in me. So I'm really very happy to make something which is very fantastic, and I hope कि सबको ये अच्छा लगा. And Amul, thank you once again, and a special mention for your chocolates. They are really awesome. Thank you very much. Namaste.